بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت عدالت نے شاہ محمود قریشی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی۔ سپریم کورٹ کا 10-10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ صرف سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا نہیں، عوامی حقوق کا معاملہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم پر فرد جرم ثابت نہیں، وہ معصوم ہیں۔ آپ ہر روز جو کر رہے ہیں اس پر بھی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سارا فوکس انتخابات کی شفافیت پر ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے صرف ایک جماعت کو آؤٹ کیوں کیا؟ جسٹس منصور نے استفسار کیا کہ پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا، تفتیش کیسے ہوئی؟ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا تمام آئی جیز کو کہیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو تنگ نہ کریں۔ سپریم کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی۔ سپریم کورٹ کا 10-10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ صرف سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا نہیں، عوامی حقوق کا معاملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں، وہ معصوم ہے۔ آپ ہر روز جو کر رہے ہیں اس پر بھی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے۔ اہم خبر سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سپریم کورٹ میں سر اہم سماعت ہوئی ہے اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی کی ضمانت بھی منظور کی گئی ہے۔ جو ریمارکس دیے گئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ وہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی معصوم ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو سپریم کورٹ کا حکم ہے سر آنکھوں پر اور ظاہر ہے اس پر کوئی تنقید کی گنجائش نہیں ہے، اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اور جو ریمارکس بھی بجا طور پر آپ نے کہا کہ ان میں کیس کو اڑا کر کیا گیا ہے، ایک موقع پر تو لگ رہا تھا کہ وہ فائنل ججمنٹ دے دیں گے۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہے، فاضل جج صاحبان کی اپنی ایک قانونی رائے ہے، اہمیت ہے، ان کا حکم ہے، وہ سر آنکھوں پر ہے۔ یہ کیس اپنے جزیات کے حوالے سے انتہائی سنگین کیس ہے۔ اس کیس میں تمام وہ شواہد جو بظاہر ہمیں بطور عام شہری نظر آتے ہیں وہ پکڑے گئے تھے۔ مطلب ان کی ایک آڈیو لیک تھی جس میں انہوں نے کہا ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے، سائفر سے کھیلنا تھا، کسی جعلی کاغذ سے نہیں کھیلنا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جلسوں کے اندر لہرایا گیا کاغذ لہرانے کا ایک ہی نتیجہ نکلا کہ پاک امریکہ سفارتی تعلقات تماشا بن گئے، جو کوئی ریاست افورڈ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی ریاست افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ بھی ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسی سائفر کے ذریعے پاک فوج کے اندر گروپنگ کرانے کی کوشش کی گئی اور بہت زیادہ اس میں معاملہ جو ہے وہ بگاڑ کی طرف گئے۔ پھر 9 مئی بھی ہوا یہ سارا معاملہ۔ تو سائفر کی آڑ میں بہت ہی گھنونا کھیل پاکستان میں کھیلا گیا، وہ کاغذ لہرا کے کھیلا گیا۔ بعد میں پرنسپل سیکرٹری ظاہر وہ عمران خان کے دائیں بازو بنے ہوئے تھے، جوشی کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ رہی۔ وہ آگے انہوں نے آ کے ایک بیان بھی دے دیا، لیکن خود ان کی اپنی زبان سے یہ اقرار موجود ہے، بانی پی ٹی آئی کی زبان نہیں، کہ ہم اس سے کھیلیں گے، اس کا تماشا لگائیں گے۔ دنیا کا کوئی ملک سفارتی معاملات ہوں، دفاعی معاملات ہوں، اسٹریٹجک نویت کے معاملات ہوں، خصوصاً امریکہ سے تعلقات ہوں، اس کو تماشا بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سائفر کو لے کر جو کچھ پاکستان میں کیا گیا وہ بہت ہی خوفناک کھیل تھا، جس نے پاکستان کی سیکورٹی کو بھی داؤ پر لگایا، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو بھی داؤ پر لگایا، پاکستان کی سیاست کو بھی پراگندہ کیا، پاکستان کے عوام کے ذہنوں کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کی غیر یقینی اور کہنا چاہیے کہ بہت ایک انتشار اس کے بیچ ہوئے۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک کیس تھا، اور لیکن اب جیسا نے کہہ دیا ہے، ضمانت دے دی ہے اور اپنی رائے بھی دے دی ہے، اس لیے یہ حکم تو ہمیں ماننا ہوگا۔ یہ جو بطور تجزیہ کار، بطور جو شہری میری اوپینین ہے، کیونکہ اگر کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو کیس بڑا واضح تھا۔ وہ ہم نے اپنے طور پر بہرحال وہ ہمارا حق ہے کہ ان کا حکم آ گیا تو اس پر تبصرہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم عدالتی حکم مانیں گے، جو حکم آ گیا اس پر عمل درآمد کے سب دائرہ پابند ہے۔ لیکن رائے یہی ہے کہ یہ ایک انتہائی سنگین نوعیت کا کیس تھا، جس میں ضمانت تو کجا مطلب ریمارکس دینے بھی نہیں بنتے تھے اس طرح کے۔
ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की अहम समाअत हुई आज। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है और साथ ही साथ जजेस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, इस डेवलपमेंट के बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ खास तौर से। एक तो ये कि वो जो पीटीआई और पीटीआई के लोगों ने जो लाडला की रट लगाई हुई थी, एक तो वो मेरे ख्याल से अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि इस फैसले के बाद, फैसले की नौयत पर तो बाद में बात करेंगे, पहले जो उनके वकला, जो उनके लीडर, उनके जो सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं, वो जो लाडले की रट लगाई हुई थी कि नवाज शरीफ लाडला है, तो जरा इसको देखिए इस तरफ आप और देख के फैसला कीजिए खुद के लाडला कौन है। दूसरी बात यह है कि साइफर केस के बारे में जो रिमार्क्स अदालत के आए हैं वो शायद ठीक होंगे उनके नजदीक, लेकिन इसका मतलब यह है कि फिर इस साइफर के कानून को जो है उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है। एक शख्स जो है जो साइफर को लहरा के पब्लिक रैली के अंदर तकरीर और उसके मनोजात बता रहा हो, अगर वो कोई जुर्म नहीं है तो फिर इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, इसको उठा के फेंक देना चाहिए। तो बहुत सारे इसके सीरियस एस्पेक्ट हैं। अब अचानक वो मासूम हो गए हैं। अब अदालतों की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स और खासतौर से जस्टिस अतर मिर्ला साहब की तरफ से कि वो तो मासूम है, मुमकिन है ये मासूमियत और किसी को दिखाई न दी हो, लेकिन इस तरह के रिमार्क्स के बाद अब उस केस की नौयत क्या रह गई है बाकी, वो आप खुद ही सोचिए कि जो लोअर कोर्ट होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, वो अब इसके ऊपर क्या अपनी मर्जी, क्या उसके ऊपर अपने मेरिट्स, क्या उसके ऊपर केस के मदरजात, केस की नौयत के ऊपर क्या राय देंगे वो, जब उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स जो है वो दे दिए हैं। तो अब इसके बारे में मैं इससे ज्यादा जाऊंगा तो वो पता नहीं फिर किस सिमत को बात निकल जाएगी, लेकिन ये कि इसका इस तरह से इस केस को लेना, इस केस को इस तरह से डिस्कस करना और इस केस के ऊपर इस तरह की जजमेंट और रिमार्क्स देना, तो मुमकिन है अदालत का तयन बहुत ठीक हो, लेकिन मैसेज बाहर यही जाएगा कि ये सब कुछ अदालत की अपनी सवाबदीद पे है कि वो जिस वक्त किसको चाहे मासूम करार दे दें और किसके खिलाफ चाहे मुकदमा खत्म करके और नीचे की अदालतों के लिए भी एक मैसेज छोड़ दें कि भाई इस शख्स को अपने हाथ नहीं लगाना है। तो वो जो लाडले का एक पुराना कॉन्सेप्ट था वो दोबारा ऊद आएगा इस फैसले के बाद। अब देखते हैं आगे ऊंट किस करवट बैठता है। अभी एक केस तो नहीं है, बाकी के केसेस भी हैं, लेकिन अगर उन केसेस को इसी तरह से फारिग करना है जिस तरह आज हमने देखा है, तो फिर कानून और जो आइन की जो सुप्रीमेसी है उसके बारे में सीरियस सवालात उठेंगे। तो जब वो उठेंगे उसके बारे में देख लेंगे। बहरहाल आज का ये फैसला जो है ये पीटीआई के लिए यकीनी तौर पे बहुत बड़ा फैसला है। पीटीआई अब समझती है कि वो इलेक्शन कैंपेन खान साहब बाहर आके कर लेंगे, लेकिन अभी बाहर आने का मरहला उनका नहीं आया है, इसलिए कि वो दीगर दो केसों के अंदर भी गिरफ्तार है। उनके खिलाफ नैब का कैफर रेफरेंस जो है वो दायर हो चुका है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो, चाहे तोशाखाना वाला केस हो। तो अभी इट्स नॉट दैट इजी दैट ही इज कमिंग आउट टुमारो एंड अपनी इलेक्शन कैंपेन वो शुरू कर देंगे। अभी मराहल बाकी हैं। जी ठीक है, अभी मराहल बाकी हैं। सलीम बुखारी साहब और नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। शुएब शाहीन, उमैर नियाजी समेत दीगर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी, एडवोकेट अली बुखारी भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। शुएब शाहीन, उमैर नियाजी समेत दीगर इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, एडवोकेट अली बुखारी भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। शुएब शाहीन, उमैर नियाजी समेत दीगर इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, एडवोकेट अली बुखारी भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है। शुएब शाहीन, उमैर नियाजी समेत दीगर इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी, एडवोकेट अली बुखारी भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। उस्मान, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंच है। इस वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है शुएब शाहीन, उमैर नियाजी, मेहर बानो कुरैशी, अली बुखारी समेत दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो इलेक्शन कमीशन में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अपने मुतालबात जो है वो कमीशन के सामने रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है इलेक्शन कमीशन को कि तमाम सब सियासी जमातों को आइंदा इंतखाबात में बराबरी के हुकूक दिए जाए और सब मुसावी तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लें। और पीटीआई का जो वक्त यहाँ पर पहुंचा है, शुएब शाहीन का कहना था कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ना ही कागजात नामजदगी वसूल करने दिए जा रहे हैं। जो उनके मुतालबात है और उन तमाम तर मसाइल को आज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में आज पीटीआई का जो वक्त है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम के सामने रखेगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम को पीटीआई का वक्त तमाम तर सूरत से जो मुल्क भर में जारी है और उन हुकाम को आज आगाह करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर कर दी गई। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर्स कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 25 से 30 दिसंबर तक मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह का मुतालबा किया था। इसी पर बात करेंगे, इस्लामाबाद से मौजूद हैं हमारे साथ बाबर शहजाद तुर्क। बाबर, बताएगा कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है इस्लामाबाद में? देखिए, मुल्क भर की तरह जो वफाकी दारुल इस्लामाबाद है, इसमें भी जो 8 फरवरी इंतखाबात के तनाजुर में जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। आज आखिरी तारीख थी इसमें, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी, उसके बाद इसमें 2 दिन की तोसीह की गई है और अब 24 दिसंबर तक जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। रिटर्निंग अफसर इस्लामाबाद के दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की जो 3 हल्के हैं, NH46, NH47 और NH48, इनमें अब तक मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बाइक वगैरह, इन मजमूई तौर पर तीनों हल्कों से 73 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अहम रहनुमा जो जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनमें साबिक जो अरकान असम्बली हैं, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर शामिल हैं। इसके अलावा आपको ये बताना चलूँ कि कागजात नामजदगी जो जमा करवाई गई हैं इनमें पहली दफ़ा ख्वाजा सरा नायाब अली की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताना चलूँ कि PTCL ने अपने जो नादहिंदा हैं उन उम्मीदवार, उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया है और PTCL ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए रिटर्निंग अफसर जितने भी हैं पंजाब के और इस्लामाबाद के, उनसे दरख्वास्त की है कि जो उम्मीदवार हैं जो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं उनकी फहरिस्तें PTCL को फराहम की जाएँ ताकि जो उम्मीदवार नादहिंदा है उनके हवाले से PTCL अपनी रिकवरी कर सके। ठीक है, बाबर शहजाद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची से अक्सा शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अक्सा, कराची की क्या सूरत हाल है? कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे थे कि कराची के जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, ज़िला वस्ती, इसमें जो है वो गहमा गहमी काफ़ी स्लो थी। जो उम्मीदवार है उनका टर्नआउट काफ़ी कम नज़र आ रहा था, क्योंकि आज जो है अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख में तोसी ना करती कागजात जमा करवाने की तो तीसरा और आखिरी रोज़ होता, लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन ने 23 और 24 तारीख का जो है वो 2 दिन का इजाफा कर दिया है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं जहाँ मौजूद हूँ, आबादी के हिसाब से ये एक बड़ा हल्का है, कम से कम 21 लाख वोटर जो है वो यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर उम्मीदवार जो है, आज उम्मीदवार की गहमा गहमी हमें सुबह 9 बजे से ही ज़्यादा देखने में आ रही है। उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि आज आखिरी रोज़ होता तो सुबह से यहाँ पर रश देखने में आ रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब ऐलान किया तो यहाँ पर जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान आए, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराई और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है ये पैगाम लोगों को दिया कि जो जमात इस्लामी है इस बार वो सूबाई असम्बली से बाहरी अक्सर में जो है वो मैंडेट लेगी और कराची की आवाम की खिदमत करेगी। और बाकायदा उन्होंने ये कहा कि कराची के आवाम के पास जो है वो जमात इस्लामी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अक्सा शाहिद कराची से और इस्लामाबाद से बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर PTI का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। शुएब शाहीन, उमैर नियाजी समेत दीगर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी, एडवोकेट अली बुखारी भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं।
अपडेट कर रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। शुएब शाहीन, उमैर नियाजी समेत दीगर इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, एडवोकेट अली बुखारी भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। शुएब शाहीन, उमैर नियाजी समेत दीगर इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, एडवोकेट अली बुखारी भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है। शुएब शाहीन, उमैर नियाजी समेत दीगर इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, एडवोकेट अली बुखारी भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। उस्मान, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंच है। इस वफ्द में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है शुएब शाहीन, उमैर नियाजी, मेहरबानो कुरैशी, अली बुखारी समेत दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो इलेक्शन कमीशन में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अपने मुतालबात जो है वो कमीशन के सामने रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है इलेक्शन कमीशन को कि तमाम सब सियासी जमातों को आइंदा इंतखाबात में बराबरी के हुकूक दिए जाए और सब मुसावी तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लें। और पीटीआई का जो वक्त यहाँ पर पहुंचा है, शुएब शाहीन का कहना था कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ना ही कागजात नामजदगी वसूल करने दिए जा रहे हैं। जो उनके मुतालबात है और उन तमाम तर मसाइल को आज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में आज पीटीआई का जो वक्त है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम के सामने रखेगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम को पीटीआई का वक्त तमाम तर सूरत से जो मुल्क भर में जारी है और उन हुकाम को आज आगाह करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर कर दी गई। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर्स कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 25 से 30 दिसंबर तक मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह का मुतालबा किया था। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से मौजूद हैं हमारे साथ बाबर शहजाद तुर्क। बाबर, बताएगा, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है इस्लामाबाद में? देखिए, मुल्क भर की तरह जो वफाकी दारुल इस्लामाबाद है, इसमें भी जो 8 फरवरी इंतखाबात के तनाजुर में जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। आज आखिरी तारीख थी इसमें, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी, उसके बाद इसमें 2 दिन की तोसीह की गई है और अब 24 दिसंबर तक जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। रिटर्निंग अफसर इस्लामाबाद के दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की जो 3 हल्के हैं, NH46, NH47 और NH48, इनमें अब तक मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बाइक वगैरह, इन मजमूई तौर पर तीनों हल्कों से 73 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अहम रहनुमा जो जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनमें साबिक जो अरकान असम्बली हैं, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर शामिल हैं। इसके अलावा आपको ये बताना चलूँ कि कागजात नामजदगी जो जमा करवाई गई हैं, इनमें पहली दफ़ा ख्वाजा सरा नायाब अली की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताना चलूँ कि PTCL ने अपने जो नादहिंदा हैं उन उम्मीदवार, उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया है और PTCL ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए रिटर्निंग अफसर जितने भी हैं पंजाब के और इस्लामाबाद के, उनसे दरख्वास्त की है कि जो उम्मीदवार हैं जो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं उनकी फहरिस्तें PTCL को फराहम की जाएँ ताकि जो उम्मीदवार नादहिंदा है उनके हवाले से PTCL अपनी रिकवरी कर सके। ठीक है बाबर शहजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची से अक्सा शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अक्सा, कराची की क्या सूरत हाल है? कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे थे कि कराची के जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है ज़िला वस्ती, इसमें जो है वो गहमा गहमी काफ़ी स्लो थी। जो उम्मीदवार हैं उनका टर्नआउट काफ़ी कम नज़र आ रहा था, क्योंकि आज जो है अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख में तोसी ना करती कागज़ात जमा करवाने की, तो तीसरा और आखिरी रोज़ होता। लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन ने 23 और 24 तारीख का जो है वो 2 दिन का इजाफा कर दिया है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो मैं जहाँ मौजूद हूँ, आबादी के हिसाब से ये एक बड़ा हल्का है। कम से कम 21 लाख वोटर जो है वो यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर उम्मीदवार जो है, आज उम्मीदवार की गहमा गहमी हमें सुबह 9 बजे से ही ज़्यादा देखने में आ रही है। उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि आज आखिरी रोज़ होता तो सुबह से यहाँ पर रश देखने में आ रहा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब ऐलान किया तो यहाँ पर जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान आए, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराई और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है ये पैगाम लोगों को दिया कि जो जमात इस्लामी है इस बार वो सूबाई असम्बली से बाहरी अक्सर में जो है वो मैंडेट लेगी और कराची की आवाम की खिदमत करेगी। और बाकायदा उन्होंने ये कहा कि कराची के आवाम के पास जो है वो जमात इस्लामी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अक्सर शाहिद कराची से और इस्लामाबाद से बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अखर की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हलकों से कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह, नासिर हुसैन शाह, अवैस शाह, फरुख शाह, नुमान इस्लाम शेख, सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खुड़ू ने लाड़काना से कागजात जमा करा दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने NA 155 लोधरा से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन भी हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि ऐसी मजबूत हुकूमत बने जो 5 साल पूरे करे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कायम कमेटी अपना काम कर रही है। मुझे एक और हलके से भी इलेक्शन लड़ने की ऑफर की गई है। इस्लामाबाद के हलका NA 47 से ख्वाजा सरा इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। ख्वाजा सरा उम्मीदवार नायाब अली ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इस्लामाबाद के हलका NA 47 से ख्वाजा सरा इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। ख्वाजा सरा उम्मीदवार नायाब अली ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेवन शरीफ से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरे मुल्क से पीपल्स पार्टी की जीत देख रहा हूँ। मेरे हल्के के आवाम का जो लोग आए, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे बलूचिस्तान एक्सिम बैंक की एक्सपोर्ट फाइनेंस की सहूलत के तहत पहली ट्रांजैक्शन द बैंक ऑफ पंजाब नई शुरू की गई है। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम एक्सिम के लिए लेन देन करने वाला पहला बैंक बन गया। तकरीब में निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, हुकूमत और स्टेट बैंक के सीनियर नुमाइंदों ने शिरकत की। एक्सिम बैंक के सदर सैयद इरफान बुखारी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। BOP की नुमाइंदगी हेड कॉर्पोरेट बैंकिंग आसिम जहांगीर सेठ और हेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग मोहम्मद साकिब सज्जाद ने की। मुल्क में बरामदात के फ़रोग के लिए बैंक ऑफ पंजाब ने एक्सिम बैंक की पहली मास्टर इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी दस्तखत किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।